Good morning students, how are you? I hope you all are fine. I am your English teacher Ruchi Singh and today we will do question answers of class 3 English chapter 1 Work while you work. So let us begin question answers. Question number 1, it's an activity. Tick the work you do while reading in the class. उस वर्क पे आपको टिक करना है जो आप क्लास में रीडिंग करते टाइम करते हैं. पुट अ क्रॉस टू अनदर और बाकी इस वर्क पे क्रॉस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन इट. फर्स्ट इज टॉक टू योर फ्रेंड. व्हेन यू आर रीडिंग इन द क्लास, कैन यू टॉक टू योर फ्रेंड? जब क्लास में आपको टीचर पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपने फ्रेंड से टॉक करनी चाहिए? नो. सो वी विल क्रॉस इट. ओके. नेक्स्ट, प्ले विथ योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहिए जब आपकी स्टडी चल रही है? नो. सो वी विल क्रॉस इट. नेक्स्ट इज लिसन टू योर टीचर. अपने टीचर को सुनना चाहिए आपको. यस, दिस इज राइट. व्हेन यू आर स्टडिंग इन द क्लास यू शुड लिसन टू योर टीचर. जब आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको टीचर को ध्यान से सुनना चाहिए. फोर्थ इज क्वारल विद योर फ्रेंड. अपने फ्रेंड के साथ क्वारल मीन्स लड़ाई करना. No, it is very bad habit. So we will cross it. And last is read your subject book. जब आपको क्लास में रीडिंग कराई जा रही है तो आपको अपनी सब्जेक्ट बुक रीड करनी चाहिए. Yes, you can read it. So we will tick here. Okay students, now you are able to know what work you can do in the class while reading in the class. Okay. Next question. Answer the following questions. कुछ questions दे रखे हैं, उनके हमें answers देने हैं. Question number 1 is when do you play with your friends? आप अपने friends के साथ कब खेलते हैं? किस टाइम खेलते हैं? And answer is we play with our friends in evening. कब खेलते हैं? Evening में, after finishing homework. Okay students. Next is what will happen if you don't complete your homework in time? What happened? अगर आप अपना होमवर्क टाइम पे फिनिश नहीं करेंगे तो क्या होगा? आंसर इज इफ वी डोंट कंप्लीट अवर होमवर्क इन टाइम वी विल बी पनिश्ड बाय टीचर. अगर आप अपना होमवर्क टाइम से फिनिश नहीं करेंगे तो आपको टीचर से पनिशमेंट मिल सकती है. ओके स्टूडेंट्स, सो फिनिश योर होमवर्क एट time. Now fill in the blanks with missing letters from the poem. कुछ words हमें यहाँ दे रखे हैं और उनमें कुछ letters missing हैं. हमें वो letters fill करने हैं और ये words कहाँ से हैं? आपकी poem से हैं. So first is H-P-P-Y. Which word is this? Happy. So spelling of happy is H-A-P-P-Y. So क्या fill किया इसमें हमने? A. तो ये word complete हो गया happy. Next is M-G-H-T. Which letter will come here? कौन सा letter आएगा इसमें? ये word है might. Means with full force, पूरी effort लगाना. So its spelling is
MIGHT. तो वी विल राइट हियर I. हमने कौन सा लेटर लिखा यहाँ पे? I. तो ये बन गई स्पेलिंग आपकी MIGHT. ओके. नेक्स्ट इज H-LV-S. Which word is this? This is halves. So its spelling will be HALVES, means half, halves. Next is M-M-NTS. Which word is this? This is moments. And what is the spelling of moments? Moments की spelling क्या थी? M-O-M-E-N-T-S. Moments means पल या क्षण. So now spelling is complete. Moments. Next is TR-FL dash. Which word is this? This is trifle. So spelling it will be T-R-I-F-L-E. Trifle. Moments are useless. Trifle away. Okay students. Now you understand. Next question. Read the poem again and match column A with column B. पोएम फिर से पढ़ेंगे और कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करेंगे. सो रीड द पोएम अगेन और लर्न इट. देन वी विल डू दिस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट इट. कॉलम ए, ऑल दैट यू डू. और इसकी सेकेंड लाइन क्या थी? ऑल दैट यू डू, do it with all your might. So we will match this to this one. All that you do it with all your might. Next is moments are useless. And its next line is trifle away. Moments are useless, trifle away. Or we can do like that, all that you do, we can give number. हम इन पे number भी दे सकते हैं यहाँ पे. That इसका first number 1, 2, 3 and 4. So all that you do it with all your might. Moments are useless, trifle away. This is second number. One thing each time, and that done well. And last is things done by halves are never done right. In this way you can do this question. Understand it? Now there are some names of outdoor and indoor games in the box given below. Outdoor and indoor games. क्या होते हैं outdoor and indoor games? Outdoor games are those games which we cannot play at our home. जिन games को हम एक रूम में, एक घर में नहीं प्ले कर सकते हैं उनको outdoor games कहते हैं. And games which can play in our house are called indoor games. और जो गेम हम अपने रूम में, अपने घर में खेल सकते हैं उनको क्या कहते हैं? इंडोर गेम्स. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको इंडोर और आउटडोर गेम्स में डिफरेंस पता चल गया. नाउ लेट अस सी नेम ऑफ द गेम्स विच आर गिवन हियर. क्रिकेट, टेनिस, खो खो, स्नेक एंड लैडर, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लूडो, चेस, कबड्डी, कैरम. नाउ व्हाट विल यू डू? अब हम इन गेम्स में से चूज करेंगे दैट विच गेम्स आर आउटडोर गेम्स एंड विच गेम्स आर इंडोर गेम्स. कौन से गेम आउटडोर गेम है और कौन से
इंडोर गेम्स हैं। सो लेट अस स्टार्ट। नाउ पुट देम इन देयर बलून और चूज करके उनको हम बैलून में लिखेंगे। ये आउटडोर गेम्स का बैलून है एंड ये इंडोर गेम्स का बैलून है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज आउटडोर गेम्स। What are the outdoor games written in the box? First one was cricket. कौन सा गेम लिखा था आउटडोर? क्रिकेट एंड टेनिस एंड कबड्डी। और कौन सा गेम था? क्रिकेट, टेनिस, खो खो, फुटबॉल, बास्केटबॉल and kabaddi. Okay, kabaddi and basketball. We cannot play these games in our house. Football and one more game, kho kho. खो खो, इसके लिए भी बड़ा फील्ड चाहिए होता है खो खो खेलने के लिए। तो ये आपके गेम्स है आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, टेनिस, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड खो खो। नाउ इंडोर गेम्स। फर्स्ट वन वाज स्नेक एंड लैडर। फेवरेट गेम होता है बच्चों का, इसको इजीली हम घर में खेल सकते हैं। नेक्स्ट इज लूडो। नेक्स्ट इज चेस। चेस को भी हम घर में खेल सकते हैं। नाउ सी कौन सा गेम रह गया? स्नेक एंड लैडर हो गया, लूडो हो गया, चेस हो गया। नाउ कैरम। कैरम इज ऑल्सो अ इंडोर गेम, सो वी विल राइट हियर कैरम। Snake and ladder, ludo, chess and carom. These are indoor games. So students, समझ में आ गया आपको? What are outdoor games and what are indoor games? So let's go to another question. Write two rhyming words for each. Rhyming words क्या होते हैं? अब rhyming words means जिनकी sound same हो। जब हम टू वर्ड्स बोलते हैं कोई भी, अगर उनकी साउंड सेम होती है या राइम सेम होती है, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। जैसे आपका हो गया रैट, मैट, बैट, सो दीज आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। सब में एक ही साउंड आती है तो वो कहलाते हैं राइमिंग वर्ड्स। नाउ व्हाट वी विल डू, अब क्या करेंगे हम? कुछ वर्ड्स यहाँ हमको दे रखे हैं, इनके हमें टू राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। सो लेट अस बिगिन इट। फर्स्ट वन इज प्ले। फर्स्ट वर्ड क्या दे रखा है हमें? प्ले। प्ले में कैसी साउंड आ रही है? प्ले। अब इसके जैसी साउंड वाला हम वर्ड लिखेंगे। फर्स्ट वर्ड क्या होगा हमारा? क्ले। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? क्ले। नेक्स्ट वर्ड क्ले, ए की साउंड आ रही है, सो वी विल राइट हियर प्ले, क्ले और स्टे। ए की साउंड आ गई इसमें भी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ माइट, MIGHT, माइट। अब इसका राइमिंग वर्ड might, night, NIGHT, night and FIGHT, fight। हो गई ना सेम साउंड? might, night, fight। नेक्स्ट इज वेल। वेल का राइमिंग वर्ड टेल और सेल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज
good. Good का rhyming word. Good, wood. लकड़ी, same sound है. Good, wood. And second word, tell me second word, hood. किसी भी कोट के ऊपर का जो कैप टाइप होता है वो हुड होता है. पेन, पेन का राइमिंग वर्ड टेन एंड मैन. सेम साउंड आ रही है. पेन, टेन, मैन. नेक्स्ट इज बैट. बैट, रैट, कैट, mat. Okay students, sing, rhyming word of sing, ring, R-I-N-G, ring. And another word, king, K-I-N-G, king. Next is call. Call का rhyming word tall and wall. So here we complete rhyming words. Play, clay, stay, might, night, fight, well, tell, sell, good, wood, hood, pen, ten, man, bat, rat, cat, sing, ring, king, call, tall and wall. Okay students, these are rhyming words. Now there are some pictures given below. Think and tick the right picture and the wrong one. Some pictures are given here. यहाँ पे कुछ pictures हमको दे रखी हैं. हमें क्या करना है, सोचना है और बताना है कि कौन सी picture right है. See the picture. What can you see in this picture? एक स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है नीचे बुक्स लेके और उसका कंसंट्रेशन स्टडीज़ में नहीं है, लेकिन उसने बुक ले रखी है. सो दिस पिक्चर इज़ राइट और नॉट? दिस इज़ रॉन्ग. तो इसको हम क्रॉस कर देंगे. सी द एक्सप्रेशन. क्या कर रहा है वो? तो हंस रहा है. बुक उसके हाथ में है लेकिन वो हंस रहा है, कुछ और सोच रहा है. सो दिस इज रॉन्ग. नाउ सी दिस पिक्चर. व्हाट इज दिस चाइल्ड डूइंग? ये बॉय क्या कर रहा है? ही इज ईटिंग फूड एंड ही इज वॉचिंग टेलीविज़न. फूड खाते खाते टेलीविज़न देख रहा है और उसका सारा ध्यान कहाँ है? टीवी पे. अपने फूड पे बिल्कुल ध्यान नहीं है. सो दिस पिक्चर इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ सी दिस पिक्चर. ये साइकिल राइडर साइकिल चला रहा है और कान में इसने क्या लगा रखे हैं? ईयरफोन्स फॉर लिसनिंग म्यूज़िक. म्यूज़िक सुन रहा है. अब वो अगर म्यूज़िक सुन रहा है तो अगर पीछे से कोई हॉर्न देगा तो उसको सुनाई नहीं देगा और उससे क्या होगा? देयर कैन बी एन एक्सीडेंट. एक वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो सकता है. सो दिस पिक्चर इज राइट और रॉन्ग? रॉन्ग. दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज रॉन्ग. नाउ सी दिस पिक्चर. ये जो मोटर बाइक राइड कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग? ही इज टॉकिंग ऑन फोन. वो ड्राइव करते करते, राइड करते करते फ़ोन पे बातें कर रहा है. इज़ दिस पिक्चर करेक्ट? नो. दिस पिक्चर इज़ ऑल्सो रॉन्ग. सो वी विल क्रॉस इट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी दीज टू पिक्चर्स. What can you see in this picture? There is a scene of classroom. Classroom है, students are sitting here and teacher is teaching. And these boys are, what they are doing?
They are not studying. वो क्या कर रहे हैं? क्वारल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं. So this picture is also wrong. This is bad habit. And see this picture. There is a girl and a boy and they are studying. उनका फोकस कहाँ पर है? सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे है. So this picture is right because they are doing only studies, one thing each time, and that done well. So students, now you understand this question. Now next activity. First student will ask question and other will give answer. Can you sing? Yes, I can sing. ये जो क्वेश्चंस हैं आपको ये कैन पे बेस्ड हैं. आपको कैन वर्ड से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपके आंसर्स कैसे आ रहे हैं? यस एंड नो में. सी, कैन यू स्किप? यस, आई कैन स्किप. कैन यू राइड अ बाईसाइकिल? क्या आप साइकिल चला सकते हो? नो, आई कैन नॉट राइड अ बाईसाइकिल. यहाँ कैन का यूज़ हुआ है, यहाँ कैन का यूज़ हुआ है, यहाँ कैन नॉट यूज़ हुआ है, यहाँ यस एंड यहाँ नो. ओके. नेक्स्ट इज कैन यू प्ले खो खो? यस, आई कैन प्ले खो खो. कैन यू स्विम? नो, आई कैन नॉट स्विम. कैन यू लिफ्ट दिस टेबल? नो, आई कैन नॉट लिफ्ट दिस टेबल. नो और यस. यस और नो का यहाँ पे आंसर में यूज़ हुआ है. सो स्टूडेंट्स, क्या देखा आपने इन क्वेश्चंस में? हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया है वो किस वर्ड से स्टार्ट किया है? कैन से. सी, सारे क्वेश्चंस किस वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं? कैन. एंड देयर आंसर स्टार्ट्स विद यस और नो. उनके आंसर्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं? यस और नो. और जिनमें हम यस यूज़ कर रहे हैं उसमें हम आगे भी कैन यूज़ कर रहे हैं. एंड इन विच वी आर यूजिंग नो, वी आर यूजिंग कैन नॉट. सी, यस, आई कैन प्ले खो खो. कैन यू स्विम? नो. देन वी आर यूजिंग नो, आई कैन नॉट. सी द डिफरेंस. जहाँ आप यस यूज़ कर रहे हैं वहाँ आप कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं? कैन. मीन्स वो काम आप कर सकते हैं. यस, यू कैन डू दैट वर्क. एंड जहाँ आप नो यूज़ कर रहे हैं वहाँ आप कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं? कैन नॉट. नो, आई कैन नॉट. सो दिस वॉज द यूज़ ऑफ कैन, कैन नॉट एंड यस एंड नो. These questions are called yes and no type questions. Okay students, these were the questions of your chapter number 1, work while you work. Do all question answers in your English notebook. I hope you understand all the question answers. Thank you and have a good day.